جب مولوی مشتاق لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جبکہ جسٹس انوار الحق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور بھٹو کے خلاف قتل کے مقدمے کی سماعت جاری تھی تو لاہور میں ایک ایسی گھناؤنی واردات ہوئی جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ فلمی اداکارہ شبنم جو گلبرگ کے بنگلہ 9B میں رہتی تھی، 12 اور 13 مئی کی درمیانی شب چند پڑھے لکھے ڈاکو جن کا سرغنہ فاروق بندیال تھا فلمی انداز میں شبنم کے گھر داخل ہوئے، ان کے شوہر روبن گھوش کو رسیوں سے باندھ دیا اور رات بھر نہ صرف لوٹ مار کرتے رہے بلکہ مبینہ طور پر اداکارہ شبنم کا گینگ ریپ بھی کیا۔ اس رات کیا ہوا، ڈاکوؤں میں کون کون شامل تھا اور یہ بااثر لٹیرے سزائے موت سنائے جانے کے باوجود قانون کی گرفت سے کیوں بچ نکلے، آج ہم یہی تلخ حقائق بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے منصف سیریز کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ اداکارہ شبنم جن کا اصل نام جھرنا باسط تھا، انہوں نے 1962 میں فلم چندہ میں معاون اداکارہ کے طور پر کام کیا، جس کے بعد انہیں اس قدر پذیرائی ملی کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے فلمی دنیا کی سب سے بڑی ہیروئن بن گئیں۔ شبنم نے کم و بیش 170 فلموں میں کام کیا جن میں آس، انمول، آئینہ، دل لگی، آبرو اور زینت جیسی شاہکار فلمیں شامل ہیں۔ 70 اور 80 کی دہائی میں شبنم اور ندیم کی جوڑی بہت مقبول ہوا کرتی تھی۔ اداکارہ شبنم کے شوہر روبن گھوش بھی بہت بڑے موسیقار تھے۔ اداکارہ شبنم اور روبن گھوش دونوں بنگالی تھے، مگر جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا تو ان دونوں نے اپنی جنم بھومی کی طرف لوٹ جانے کے بجائے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا، مگر محض 7 سال بعد ہی ایک ایسی واردات ہوئی جس نے ان دونوں کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 12 اور 13 مئی کی درمیانی شب رات کے وقت اداکارہ شبنم کے گھر دستک ہوئی۔ جب ان کے شوہر روبن گھوش نے دروازہ کھولا تو فاروق بندیال، وسیم یعقوب بٹ اور سردار خان کھچی اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ سب گورنمنٹ کالج لاہور کے پڑھے لکھے مگر بگڑے رئیس زادے تھے۔ فاروق بندیال کے ماموں فتح خان بندیال جو FK بندیال کے نام سے مشہور تھے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری رہے اور اب پنجاب کے چیف سیکرٹری تھے۔ سردار خان کھچی کا تعلق بھی میلسی کے ذمہ دار گھرانے سے تھا اور وہ کم و بیش 150 مربع زمین کے مالک تھے۔ اسی طرح وسیم یعقوب بٹ اور دیگر نوجوانوں کا تعلق بھی کھاتے پیتے گھرانوں سے تھا۔ اس گھناؤنی واردات میں ملوث ملزم فوری طور پر گرفتار تو کر لیے گئے، مگر چونکہ ملزموں کا تعلق نہایت بااثر خاندانوں سے تھا، اس لیے اداکارہ شبنم کو یہ کیس واپس لینے کے لیے مجبور کیا جاتا رہا، مگر پوری فلم انڈسٹری ان کی پشت پر کھڑی ہو گئی چونکہ فوجی عدالتیں قائم کی جا چکی تھیں اور زیادہ تر مقدمات کے فیصلے سول کورٹس کے بجائے ملٹری کورٹس میں ہو رہے تھے۔ اس لیے عوامی دباؤ پر ملزموں کا ٹرائل کرنے کے لیے فوجی افسر لیفٹیننٹ کرنل خالد ادیب کی سربراہی میں ملٹری کورٹ تشکیل دے دی گئی۔ بالعموم فوجی عدالت میں حکومت کے تشکیل کردہ پراسیکیوٹر ہی مقدمہ لڑا کرتے تھے، مگر فلمی ستاروں کا خیال تھا کہ اس بار کسی قابل وکیل کی خدمات حاصل کی جائے تاکہ ملزم قانون کی گرفت سے نہ بچ پائیں۔ اداکار ندیم اور محمد علی جو شبنم کو انصاف دلوانے کے لیے پیش تھے، ان سے مشاورت کے بعد شبنم اور روبن گھوش نے ایوب خان دور میں وفاقی وزیر قانون کا عہدہ سنبھالنے والے SM ظفر کو وکیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شاید SM ظفر کے انتخاب کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ملکہ پوکھراج کے داماد ہیں، معروف گلوکارہ طاہرہ سید ان کی سسٹر ان لا ہیں اور اسی نسبت سے ان کے فلمی دنیا سے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ SM ظفر اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے شبنم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو نمایاں تھے۔ میں نے شبنم سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ مقدمہ تو سرکاری معلوم ہوتا ہے، اس میں سرکاری وکیل ہی پیش ہو سکتا ہے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ شبنم کی پلکوں پر تھمے ہوئے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ بیگم صاحبہ نے اسے کئی ٹیشو پیپر لا کر دیے اور وہ بار بار آنسو پوچھتی رہیں۔
दूसरे दिन मोहम्मद अली का फ़ोन आया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री की ख्वाहिश है कि शबनम की मुकम्मल तौर पर हिमायत की जाए, लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस मुकदमा की ज़रूर पैरवी करें। एसएम ज़फ़र अदाकारा शबनम की वकालत करने पर रजामंद हो गए तो हुकूमत ने भी उन्हें इस मुकदमे में स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। इस मुकदमे में एसएम ज़फ़र के मुआविन वकील मियाँ मोहम्मद अजमल एडवोकेट थे, जो बाद अज़ां पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। दूसरी तरफ मुल्ज़मों ने भी बहुत मशहूर वकला की खिदमात हासिल कर रखी थी। एक तरफ इन मुल्ज़मों के बासर ख़ानदान उन्हें बचाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हुकूमत को इन मुल्ज़मों को करार वाक़ई देने के लिए शदीद अवामी दबाव का सामना था, क्योंकि इन बिगड़े रईसज़ादों की तरफ से इस नौइयत की ये पहली वारदात ना थी, बल्कि इससे पहले भी इससे मिलती जुलती वारदातें कर चुके थे। एसएम ज़फ़र अपनी किताब मेरे मशहूर मुकदमे में लिखते हैं कि दरअसल इस मुकदमे ने बड़ी मखसूस ड्रामाई शक्ल अख्तियार कर ली थी। इसकी वजह यह थी कि इन्हीं मुल्ज़मों ने इससे पहले ज़मूर्द एक्ट्रेस के घर पर डाका डाला था और वहाँ भी उनका तरीक़ा वारदात इसी किस्म का था कि घर में दाखिल होकर खूब सकून और इत्मीनान से घर का कीमती सामान लूट लिया, अफराद खाना पर हुक्म चलाया। और ये अफवाह भी आम थी कि नौजवान डाकू ने इंसानी हदूद की भी पासदारी न की। दूसरी वजह यह थी कि ज़मूर्द और शबनम के घर पर डाका डालने वाले ये नौजवान डाकू शहर के खाते पीते बड़े बड़े अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, जो बहुत बासर थे। और ये कि ये नौजवान डाकू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के फारिग तहसील थे। मेरे एक क्लास फेलो और करीबी साथी के एक अजीज़ भी इस मुकदमा में मुल्ज़िम थे। एसएम ज़फ़र ने इशारे कनाए में जिन इंसानी हदूद की बात की है, उससे मुराद दरअसल ये है कि इन बिगड़े रईसज़ादों ने अदाकारा ज़मूर्द को भी इसी तरह इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और ये उनका महबूब मशगला था। अदाकारा शबनम चूँकि सुपरस्टार थी, उनके शोहर रॉबिन घोष भी बहुत बड़े फ़नकार थे और फिर वो दोनों बंगाली थे। अभी चंद बरस कबल ही मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ था। सकूत ढाका के दौरान बंगालियों के साथ हुए मज़ालिम की कहानियाँ ज़बान ज़दे आम थी, इसलिए ये वारदात इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई और मुल्ज़मों को कानून के कटहरे में लाना हुकूमत की मजबूरी बन गई। मारूफ सहाफ़ी खावर नईम हाशमी, जो उन दिनों ज़ियाउल हक पर तनकीद की पादाश में लाहौर की सेंट्रल जेल में कैद थे, वो जेल में फ़ारूक बंदियाल, वसीम याकूब भट्ट और उनके दीगर साथियों के असर व रसूख से मुताल्लिक अपने एक मज़मून में लिखते हैं कि वहाँ 6 नए कैदियों का इजाफ़ा हुआ था, जिन्हें फ़ातिहीन शबनम के लक़ब से पुकारा जाता था। बहुत धाक थी इन लड़कों की जेल में, लगता था सुप्रिटेंडेंट जेल समेत सारा अमला उनके मातहत है। इन दिनों लाहौर का सबसे बड़ा बदमाश शाहिया पहलवान भी इसी जेल में था। उसे जेल के अंदरूनी गेट के करीब बोहड़ के दरख्त तले बैठने की इजाज़त भी इन लड़कों से लेना पड़ती। वो लड़के तो जेलर की कुर्सी पर बैठकर अमले को अहकामात सादर किया करते थे। सूरज ढलने पर कोठरियों में बंद किए जाने से पहले आधा घंटा वॉक करने की इजाज़त मिली तो एक दिन फ़ातिहीन शबनम से मुलाकात हो गई। मैंने उनसे पूछा, तुमने एक नामवर एक्ट्रेस से इज्तिमाई ज़्यादती क्यों की? ये जुर्म शबनम के शोहर रॉबिन घोष और उनके कमसन बेटे रोनी को जंजीरों से बांधकर उनके सामने क्यों किया? और यही वारदात चंद दिन पहले अदाकारा ज़मूर्द के घर क्यों की गई? फ़ारूक बंदियाल और उसके साथियों को दावा था कि वो सब शबनम के घर एक अरसा से जा रहे थे। हर शाम वहाँ जुआ होता था, जो अक्सर फजर तक जारी रहता। वहाँ ज़मूर्द ही नहीं, कई अदाकाराएँ और ताश की शौकीन ऐसी ख़वातीन देखी जिनमें कई बड़े ग्रेड के ब्यूरोक्रेट्स की बीवियाँ होती। हमें वहाँ लूटा गया। वहाँ ऐसा सिस्टम था कि वो जिसे चाहें जितवा दें, जिसे चाहें कल्लाश कर दें। हम भी इस गेम के खिलाड़ी हैं। जब हमें पता चला कि फिक्सिंग होती है, हमने इंतकाम में ये दोनों वारदातें की। उस दौर में फ़ारूक बंदियाल और उसके साथी मुल्ज़िम मज़े लेकर न सिर्फ इन अदाकाराओं के जिस्मानी खदोखाल और पेचो खम बताया करते थे, बल्कि निहायत ढटाई से जुए वाली कहानी को बतौर जवाज़ पेश किया जाता। अदाकारा शबनम खुद एतराफ़ करती हैं कि उनके घर आए रोज़ पार्टियाँ होती थी और कुछ बाइद नहीं कि जुआ भी होता हो, मगर फ़ारूक बंदियाल, सरदार खान खिची और वसीम याकूब भट्ट ने साथियों से मिलकर जो घिनौनी वारदात की, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। अदाकारा शबनम का कमसन बेटा रोनी, जो तब 9 साल का था, वो इस वाक़या से नफसाती तौर पर शदीद मुतासर हुआ और शबनम ने उसे फ़ौरन बैरून मुल्क भेज दिया। फौजी अदालत में समाअत शुरू हुई तो अदाकारा शबनम को बयान रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया। शबनम फिरोजी रंग की फूलदार साड़ी में मलबूस और सफ़ेद शाल ओढ़े बहुत वक़ार और तमकनत से चलते हुए कमरा अदालत में दाखिल हुई।
मुलज़मों के चेहरे मुरझाए हुए थे। शायद उन्हें तवक्को नहीं थी कि शबनम तमाम तर दबाव के बावजूद उनके खिलाफ गवाही देने के लिए आएंगी। शबनम ने वाक़या की रोदात बयान करते हुए कहा कि उसके घर में दाखिल होने वाले मुलज़मों का सरगना फारूक बंदयाल था। तफसील बयान करते हुए शबनम बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। शबनम से पूछा गया, क्या आप अदालत में मौजूद इन मुलज़मों को शिनाख्त कर सकती हैं? शबनम की हिम्मत जवाब दे गई और वो सिसकियाँ लेकर रोने लगी। तो अदालत की सरबराही करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अदीब ने सख्ती से कहा, मैडम अपने आप को संभालें, ये अदालत है, यहाँ आपको कानून के मुताबिक शहादत देनी है। अदालत के इन रिमार्क्स पर शबनम ने अपनी हिम्मत मुस्तमे की और बाआवाज़ बुलंद कहा, मैंने इन सबको पहचान लिया है, मैं इन्हें क्यों नहीं पहचानूंगी? उन्होंने मेरा सब कुछ लूट लिया है, मेरा सुकून और इत्मीनान तबाह करके रख दिया है। फौजी अदालत ने समाअत मुकम्मल करने के बाद 5 मुलज़मों को सज़ाए मौत सुना दी। एक मुलज़म को 10 साल कैद व मुशक्कत की सज़ा सुनाएगी, जबकि एक मुलज़म को रिहा कर दिया गया। सज़ा सुनाए जाने के बाद एक बार फिर अदाकारा शबनम पर दबाव डालकर माफ़ी दिलवाने की कोशिश शुरू हो गई और अदाकारा शबनम अपनी जान बचाने के लिए इन बाअसर मुलज़मों को माफ़ करने पर रजामंद हो गई। पाकिस्तान की तारीख में एक और अनोखा वाक़या ये पेश आया कि वकील इस्तगासा एसएम ज़फ़र ने मुलज़मों की तरफदारी करते हुए जनरल ज़ियाउल हक को ख़त लिखकर अपील की कि पढ़े लिखे मुजरिमों को रहम का मुस्तहिक समझते हुए उनकी सज़ा कम कर दी जाए। एसएम ज़फ़र ने 26 अक्टूबर 1979 को जनरल ज़ियाउल हक के नाम लिखे गए ख़त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैंने दौरान समाअत मुलज़मों का मुशाहिदा किया है और उन असबाब पर भी गौर किया है जिनके तहत यह जुर्म सरजद हुआ है। ये नौजवान लड़के गुज़िश्ता हुकूमत के मुरव्वजा शुतर बेमुहार तरीक़ाकार के तहत ख़ता कर बैठे। मुआशरे में इस्लाही इक़दामात का फुक़दान था। मैं समझता हूँ कि इन जराइम के इर्तिकाब की ज़िम्मेदारी मिन हैसुल मजमूई मुआशरे और निज़ाम पर आयद होती है। लिहाजा मैं ये लिखने पर मजबूर हूँ कि आप इस मामले में तवाज़ुन कायम करें। जहाँ कानून में मौत की सज़ा है वहाँ आप अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए बुर्दबारी के तहत मुजरिमों की सज़ा उम्र कैद में बदल दें। ये अमल इस्लाम के एहसान के फ़लसफ़ा के ऐन मुताबिक होगा। एक वकील जो अपने मुवक्किल से फ़ीस वसूल करता है, उसकी तरफ से फ़रीक़ मुखालिफ की वकालत पेशावराना बददियानती कहलाती है या नहीं, इस हवाले से तो कानूनी माहिरीन ही राय दे सकते हैं। ताहम एसएम ज़फ़र भयानक जुर्म के मुर्तकिब अफराद के लिए रहम की अपील करते वक्त ये भूल गए कि इस्लाम मुजरिमों के लिए एहसान नहीं बल्कि इंसाफ और अदल का तकाज़ा करता है। बहरहाल जनरल ज़ियाउल हक, जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत से मुतल्लिक़ रहम की अपील बेक जुम्बिश कलम ये कहकर मुस्तरद कर दी थी कि इस्लाम मसावात का कायल है और वो निज़ाम अदल की राह में हायल नहीं होंगे, उन्होंने फारूक बंदयाल और उनके साथियों की सज़ाएं उम्र कैद में तब्दील कर दी और फिर कुछ अरसा जेल में रहने के बाद ये लोग रिहा हो गए। रिहा होने के बाद एक और प्रोपेगेंडा ये किया गया कि उन्हें गैंग रेप के जुर्म में सज़ा नहीं हुई बल्कि डकैती के इल्ज़ाम में मुजरिम करार दिया गया। मगर हकीकत यह है कि निज़ाम अदल और निज़ाम हुकूमत ने मिलकर इन बासर मुजरिमों की पर्दापोशी करने की कोशिश की, वरना PPC में डकैती की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उम्र कैद है। अगर इन लोगों ने महज लूट मार की होती तो उन्हें हरगिज़ सज़ाए मौत ना दी जाती। अगरचे एसएम ज़फ़र अपनी किताब में ये वाक़यात मुहतात अंदाज में बयान करते हुए गैंग रेप वाली कहानी छुपा गए, मगर एक पैराग्राफ से ये तासुर ज़रूर मिलता है कि फारूक बंदयाल और उनके साथियों का असल जुर्म इज्तिमाई ज़्यादती ही था। एसएम ज़फ़र अपनी किताब मेरे मशहूर मुकदमे में लिखते हैं कि ज़िना बिल जबर के मुकदमात की तहकीक से ये नतीजा बरामद हुआ है कि मुस्तगीसा ज़हनी तौर पर यह समझती है कि जो कुछ हो गया है सो हो गया है, इसकी तलाफ़ी मुजरिम को सज़ा दिलाने से तो ना हो सकेगी, अलबत्ता इससे मज़ीद सुबकी ज़रूर पैदा होगी और वाक़यात का जिक्र करके जो ज़हनी अजियत और कोफ्त पहुँचेगी वो अलग, और मुकदमा की शोहरत से बदनामी में जो इजाफ़ा होगा वो अलग सुहाने रूह साबित होगा। चुनांचे अक्सर ख़वातीन यही बात सोच कर सिरे से मुकदमा दर्ज ही नहीं करवाती। ये बात एसएम ज़फ़र ने अदाकारा शबनम के फ़ौजी अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाने के तनाज़र में लिखी है, जिससे इस बात की वाज़े तौर पर तस्दीक होती है कि शबनम की हिचकिचाहट की वजह भी यही थी कि वो ज़िना बिल जबर के सदमे से गुजरी। ये बातें भी ज़ेरे गर्दिश रहीं कि जब मुलज़िम रिहा हो गए और शबनम की ज़िंदगी बर्बाद हो गई तो उन्होंने बांग्लादेश जाने की कोशिश की जहाँ उनके वालिदैन मुकीम थे, मगर ज़ियाउल हक सरकार ने उन्हें यह सोच कर बाहर जाने की इजाज़त
اجازت نہ دی کہ اگر وہاں جا کر شبنم نے اپنی خاموشی توڑ دی تو ملک کی بدنامی ہوگی۔ فاروق بندیال کے ماموں فتح خان بندیال اب وفاقی سیکرٹری داخلہ بن چکے تھے اور شبنم کئی برس وزارت داخلہ سے NOC لینے کے لیے ماری پھرتی رہیں۔ آخرکار انہوں نے درخواست دی کہ ان کے والد شدید بیمار ہیں اور وہ ان کی عیادت کے لیے بنگلہ دیش جانا چاہتی ہیں۔ تب کہیں جا کر انہیں بنگلہ دیش جانے کی اجازت ملی۔ وہ بنگلہ دیش گئیں اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئیں۔ اداکارہ شبنم اپنے شوہر رابن گھوش کی وفات کے بعد چند برس قبل تب پاکستان آئیں جب انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینے کے لیے مدعو کیا گیا۔ اس واقعہ میں ملوث بگڑے رئیس زادوں کی جوانیاں بھی اب ڈھل چکی ہیں۔ میلسی سے تعلق رکھنے والے سردار خان کھچی جو سزا سے بچ نکلے، وہ 2 بار پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور اب وفات پا چکے ہیں۔ فاروق بندیال نے کچھ عرصہ قبل عمران خان سے ملاقات کر کے PTI میں شمولیت کا اعلان کیا تو سوشل میڈیا پر سخت احتجاج کیا گیا، جس کے بعد انہیں PTI سے نکالنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے وسیم یعقوب بٹ بھی MH میٹل انڈسٹریز کے نام سے کاروبار کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج جنہوں نے ضیاء الحق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ چند جرنیلوں کو الٹا لٹکا دینا چاہیے، ان کا انجام کیا ہوا، یہ روداد سنائیں گے پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔